Mr. Owaisi is on record having said that they follow Fatawa Alamgiri. Okay, now the Fatawa Alamgiri, I have had the occasion to translate Fatawa Alamgiri, large parts of it, especially the जो उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रिलेशंस विद नॉन बिलीवर्स, इट्स कॉल्ड किताब सियर. वो किताब सियर जो है वो हिंदी में मेरे जो हमारा जयपुर डायलॉग्स का वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोडेड है फ्री डाउनलोड के लिए. एनीवन कैन सी. व्हाट डज इट स्टार्ट विद? जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं. सर, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम. उससे उसे कैसे बदलेंगे? दिस इज ओवैसी ऑन रिकॉर्ड. ओवैसी ऑन रिकॉर्ड. और एक और बात बता दूं, yesterday 5 gentlemen were considered intellectuals, modern Muslims, moderate Muslims. They issued an appeal where they, यहाँ पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट को तो कंडेम किया. बॉम्ब ब्लास्ट को कंडेम करने के साथ साथ अगर आप उसको पूरा जो लिखेंगे ना तो देखेंगे तो उसमें जो है it reads like an apology, some kind of a defense कि नहीं भाई हम इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ नहीं है. और ये वही लोग हैं जो गाजा में, पैलेस्टाइन में, इंटरनेशनल कॉजेज में, और पूरा वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल है, एक मॉडल है मुस्लिम ब्रदरहुड का, और उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल उसी तरह से दिखते हैं. ये इनके नाम बता देता हूँ मैं. SY कुरैशी, XIS, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर. लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन खान, इसका ये आपके ज़मीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन का भाई. फिर उस पर वो क्या नाम है उसका, नजीब जंग, अनदर XIS ऑफिसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, प्लस एक कोई मिस्टर शेरवानी है, शाही सदीकी. ये 5 लोग हैं. दिस इज द टिपिकल रिस्पॉन्स. आप किसी को भी देख लीजिए जो है मॉडरेट, वो दे डू दैट. आई विल go to General Narayanan and get his comments also on this. I'll add further to what you had mentioned and take what General Shankar has said a little further. Whatever I have read on the Hadith and Quran and this Quranic concept of war which Pakistan is supposed to follow, written by Brigadier S.K. Malik, इसमें 4 essential मुद्दे निकल के आते. Firstly, the entire globe is divided into 3 parts. एक तो Darul Aman. Darul Aman is when they are in less numbers and population in a particular place. When they come close to 20% and above, starts the Darul Harb, which is the fight. And the aim is Darul Islam, to make the entire globe under radical Islam, Islamic rule. This is the concept. तो ये जो 5 निकल के आए ना, ये दारुल अपने अमन के पीछे लेके आए हैं. इनको जूते पड़ने चाहिए कि भाई साहब आप झंडा लेके निकल के आइए बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे. पूरा जो कैंडल लाइट कराना है, जो कराना है, वी वांट टू सी यू ऑन द स्ट्रीट्स अगेंस्ट योर ओन ब्रदरन who are doing it. That is number 1. And you will give information of all the mullahs in all the mosques who are talking about all these crass issues. Next, very important, the most important part in their hadith is any land which was occupied by the Muslims and from where they have lost power, it is the task of every Muslim to reclaim power. And that is what is Ghazwa-e-Hind all about. One part of it, yes. They've lost power and you have to capture it back again. And Andalusia of Spain is also under threat because that was the area which were Granada and all that area which was covered by, which was ruled by the Muslims, Moors. So, but India is next door. वहां पे जाने के लिए उनको टाइम लगेगा. इंडिया में तो आपने 2 बंदे दोनों साइड पे दे रखे हैं कराने के.
So this is their basic thought process from where all these people are coming and doing all this. So the moderates have to step out now and start informing कि ये बंदा है, ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, so that they can be caught. Number 2, now we need to have a build up for the Sindhu 2.2. I'm being very blunt about it. उसके पहले जैसे गल्फ वॉर 1 में किया था यूएस ने, शॉक एंड ऑ बिफोर दे वेंट इन, हम भी करना चाहिए शॉक एंड ऑ इन द ग्रे जोन, दोनों साइड, बिफोर यू गो इन. वो नोटैम क्या है? वो शॉक एंड ऑ नहीं है, वो नोटैम्स जो चल रहे चारों तरफ. नहीं, नोटैम में उतना नहीं. शॉक एंड ऑ में असली कुटाई हो रही है ना अंदर. अपने लोगों, अपने बंदों से जो आप उनको करवा रहे हो, दूसरे साइड से, सब साइड से उनकी कुटाई कराओ. अब वो कुट रहे हैं, अब बोल भी नहीं सकता कि अब वो रोता है कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो खुल के करो, सुताई दबा के कराओ उनका, और सेट द स्टेज बेस्ड ऑन दैट कि जब पूरा लुट चुका होगा, वो पाक आर्मी जो हमारे तरफ भेज रहा होगा उसको सब तरफ भेजना पड़ेगा. आर्मी भी अपना सरेंडर कर रहा है तो एलईटी और जेईएम को भेजना शुरू करेगा कि अब उनको बुलाएगा पहाड़ों से, और छुपो मत नहीं यार, मेरे पिछवाड़े में आग लग गई, उसके बाद ठोको. Something like that has to be planned. उधर चिकन नेक में भी तो ऑपरेशन चल रहा है सर. Look, और बढ़ा दो उसको बढ़ा दो. Look, the fundamental thing is you cannot defeat a ideology just by military alone. एक आइडियोलॉजी को to defeat it, you need your own political ideology and make it stronger with military. And like sorry sir, आपके Yeah, बांग्लादेश में अभी तो स्ट्राइक्स वगैरह सब चल रहे हैं, जला दो, शुरू करो. किसने रोका? You don't have to. देखिए, ये we don't have to deploy your military till the last moment. इसीलिए मैंने बोला मिलिट्री को डिप्लॉय कीजिए, नो टाइम करो, ये करो, थोड़ा बहुत एक्शन भी कीजिए, एलसी के ऊपर एक्शन कीजिए, सरक्रिक के ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन कीजिए, ताकि उनका फौज जो है हमारी ओर आकर्षित हो. फिर अफगानिस्तान वालों से बोलिए जो भी करना है करो, आप बीएलए वालों को बोलिए जो भी करना है करो. दिस इज द टाइम वी शुड टेल बीएलए कि भाई आप डिक्लेयर बलूचिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट, विल सपोर्ट यू, विल रिकॉग्नाइज. उसमें क्या है, कुछ भी रिकॉग्नाइज कर लो पाकिस्तान के अंदर, सो दैट पाकिस्तान नोज व्हाट इट इज टू बी फिंगर्ड फ्रॉम इनसाइड. हमें यहां दर्द नहीं हो रहा है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसके साथ यही नहीं है, इंटरनली ये मुसलमानों के साथ ये कम्युनिस्टों को भी पकड़ो, वो भी इनके गीत गा रहे हैं. देखिए, ये कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, ये जोरान ममदानी है ना, उसका एक डिस्क्रिप्शन है, ये बाहर एक तरबूज की तरह है, ये बाहर की तरह ग्रीन है, इस्लामिक, और अंदर जो लाल कम्युनिस्ट है ये, ठीक है. ये सब ऐसे ही है. ये जितने ये यहाँ के लोग जो ऐसे इन बिटवीन बोलते रहते हैं, ये सब तरबूज है. पर यहां भी तरबूज को काटना पड़ेगा आपको, राइट? Indian Muslims have to be clear whether they want to follow secularism as per the constitution and be clear with the, have loyalty to the constitution, or they want to be loyal to their religion. There's no doubt about it. With Pakistan, you have to be clear as to how to defeat this political ideology which is coming out of that. And for that, kuch bhi karo. If they are prepared to do anything, and if this dictator says अगला अटैक नॉर्थ ईस्ट से होगा, हमें भी बताना चाहिए कि भैया तेरे पास भी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, सेंटर है, सब कुछ है. उसके ईस्टर्न बॉर्डर के अलावा हर जगह आप उसको टोको. वो तो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, नेम सेक ओनली, ख्वाजा आसिफ, तो कह रहा था हमारा 2 फ्रंट वॉर शुरू हो चुका है. तो हो चुका है तो और नहीं, 2 फ्रंट को छोड़ो, 3 कर दो ना, इंटरनल भी पंजाब में भी शुरू कर दो, तो फिर 3 फ्रंट हो जाएगा उसका.
और मेरा देखिए संजय जी, इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूं कि ये वक्त आ गया कि रिक्लेम पीओके पॉलिटिकली। जिस दिन आप पीओके के और बोलोगे पॉलिटिकली कि भाई ये आप हमारा है, वापस कीजिए, एक और कुछ नहीं करने की जरूरत है। यू जस्ट टेल पाकिस्तान प्लीज रिटर्न इट, यू टेल चाइना लेट पीओके और स्टॉप योर कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली, एंड 10 आदमी जो पीओके के हैं जो बाहर हैं, 10 15 20 जो है, उनको ले आइए और उनको नियुक्त कीजिए, नॉमिनेट कीजिए और अपने एमएलए बनाइए और असेंबली में खड़ा कीजिए और उनको बोलो असेंबली से बोलना शुरू करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू कीजिए, टेक दैट आउटरीच। उनको बोलो अच्छा ठीक है, आपके पास बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क पानी बिजली के बारे में बात करो, पीओके के बारे में वो बोलेंगे तोतों की तरह। जब तक आप ये शुरू नहीं करोगे, व्हेन द डे वी स्टार्ट कि भाई पीओके के लोग बोलना शुरू करेंगे, फिर देखिए ये पाकिस्तान में क्या पटाखा फटना शुरू होगा। एक वही जगह बचा है जहां शुरू नहीं हो रहा, और जब भी शुरू होता है हम उनको मदद नहीं करते, राइट? लुक, हम कुछ भी बोल सकते हैं ऑप सिंदूर 2 3 4, पर अगला ऑप सिंदूर जो है पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए और उनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स को यू शुड हिट देम। ये नहीं कि आप अपना फौज को इस्तेमाल करो। हमारा फौज और बहुत कामों के लिए है। हमारा पूरा इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, चाइना के साथ जो भी करना है करने की जरूरत है। पाकिस्तान को, यू शुड डिफीट पाकिस्तान विद पाकिस्तान।